یہ غلط ہے۔ مزمل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کا دماغ اسے مسلسل کہہ رہا تھا، بیگ صاحب آپ غلط کر رہے ہو، مت جاؤ معراج کو۔ مسٹر بین عجیب باتیں کر رہے ہو، ان کا آپریشن ہوا ہے، مزمل صاحب کو جانا چاہیے، بیماری میں دوائی وہ کام نہیں کرتی جو ایک نظر کر جاتی ہے، مزمل صاحب کی ایک نظر مرہم کا کام کرے گی، محترم ماہم جی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ دل نے اپنے دلال پیش کرتے ہوئے ماہم کا نام انتہائی عقیدت و احترام سے پکارا تھا۔ یا اللہ ماہم کو وہ صحت عطا فرما جس کی بیماری کے باعث نہ ہو۔ مزمل نے مختصر سی دعا کی، حکیم صاحب اسے دیکھ رہے تھے۔ مزمل نے منہ پر ہاتھ پھیرے اور اٹھ کر چل دیے۔ مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچ کر نگاہ اٹھائی، وہ سامنے کھڑکی پر ہی کھڑی تھی، پورے چاند کی چاندنی کی طرح۔ جس طرح پورے چاند کی چاندنی کھڑکی سے اندر جھانکتی ہے، بالکل ویسے ہی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کا مکھڑا چاند کی طرح سفید تھا، اجلا دھلا ہوا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے چاند کے اوپر ہلکے ہلکے سے داغ۔ اس کے ہونٹوں کے پھول کی پتیوں جیسا تبسم تھا۔ مزمل کی ایک نگاہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوٹی تھی۔ شاید شوقی نے زندگی بھر عیش کیا تھا، تو نے یہ رشتہ کروا دیا۔ ماہر سعید نے شوقی کو جاتے ہوئے تھپکی دی۔ ماہر جی اس رشتے پر کیوں اتنا زور دے رہے ہو؟ ماہر سعید بیوی نے شوقی کے جانے کے بعد پوچھا۔ چودھران یہ تو چودھران کی طرح سوچا کر، پورے 6 مربع ابا جی نے سنبل کے نام کر دیے تھے۔ میں نے تو میاں چنو اس لیے بھیج دیے تھے، خود مزے کریں گے اس کی زمین پر، وہاں بھی چنچڑا کے آئے گی۔ اب تو بتا، باہر شادی کروں گا تو 6 مربع تو گئے۔ چودھری شمشاد ہمارا رقبہ ساتھ لگتا ہے، شمو سے کہوں گا تو زمین تیری زمینوں کے ساتھ لگتی ہے، وہ تیری جو میری زمینوں کے ساتھ لگتی ہے۔ اس کے باپ کا ڈر تھا میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری بیٹی کو نہیں دے گا، اس لیے وہ اپنی زندگی میں سنبل کے نام اس کا حصہ لگا لائے گا۔ میں شادی کروں گا تو صرف سنبل سے۔ اماں تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ دے گی، اب ابے کے ساتھ جا کر دل بھی رکھائی۔ شمو نے اپنی ماں شاہدہ بی بی پر لال پیلا ہو رہا تھا۔ میں کیا کہتی، تو جانتا تو ہے اپنے ابے کو بھلا کیسے یہ سنتا؟ شاہدہ بی بی نے اپنی بے اختیاری کا ذکر محسوبیت سے کیا۔ سنبل کہتی ہے تب شادی کروں گی شمو جب تو سستانی سے منگنی توڑ دے گا۔ وہ منگنی پر نہیں مانتی تو سوتن پر کیسے مانے گی؟ اماں تو نے میری زندگی مصیبت میں ڈال دی ہے۔ شمو یہ کہتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ زندگی جینے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، موت ہمیشہ بغیر مشقت کے آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ ماہم نے اشارے کو جواب دیا، اس کی ذمہ داری کے لیے آئی تھی۔ یعنی تم کہہ رہی ہو لائف ونڈو کی دوسری طرف سے ہے اور ڈیتھ روم اس کے اندر ہمارے سامنے؟ اشار نے کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں زندگی تو کھڑکی سے نیچے مسجد کی زمینوں پر کھڑی ہوتی ہے، مجھے جینے کی امید دلاتی ہے، 24 گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے، میں اگلی 24 گھنٹوں اس لمحے کا انتظار میں گزار دیتی ہوں۔ مزمل اشال اپنے بستر پر لیٹی ہوئی مزمل اور ماہم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ دونوں تفریح میں گم تھی، خیال ہی خیالوں میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، رابطوں کے لیے انسان نے ایجاد کر لیا ہے ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک۔ یہ دونوں کم بخت پھر بھی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کرتے، سالہ سوا سے بڑھ کر ایک دوسرے کا فیس دیکھ رہے ہیں۔ پاگل ہیں دونوں، پاگل۔ 2020 میں شروع ہونے والی ہیں یہ دونوں پرانے زمانے والی محبت میں پڑے ہیں۔ ماستیرا جا کر اس کے اگر کسی کی کہانی سناؤں تو لوگ کہیں گے چل جھوٹی میں 1000 کوشش کر لوں، مزمل کبھی بھی ماہم کو نہیں ہو سکتا، شمو یہ بھی نہیں ہونے دے گا، ماہم میری فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ تو ہوں مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مزمل کو بتا دیتی ہوں کہ شمو کتنا خطرناک آدمی ہے۔ اشار بیٹی دودھ پی لو۔ اشار نے پلٹ کر دیکھا، حکیم صاحب دودھ کا گلاس تھامے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اشار نے اس کے تکیے کے پاس سے اپنا دوپٹہ اٹھایا، جلدی سے اوڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔
माफ़ करना बेटी, दरवाज़ा खुला था, बगैर दस्तक दिए अंदर आ गई। हकीम साहब ने इशा की बौखलाहट देख कर कहा, अम्मा मैं खुद ले लेती, आपने क्यों तकलीफ़ की। इशाल ने खुद को नामर्द ज़ाहिर करते हुए कोशिश की। इशाल बेटी, बड़ों की बात, आंवला और हरी खाने का असर हमेशा बैद में पता चलता है। मैंने कहा था ना मुज़म्मिल को यहाँ आना ठीक नहीं है। हरी की तरह हकीकत भी अक्सर कड़वी होती है। मुझे पता है तुम ये चाहती हो कि माम और मुज़म्मिल की शादी जैसे भी हो बस हो जाए। गलत तो गलत है इशाल, तुमने साबित करना है कि तुम हकीम आकिल अंसारी की बेटी हो, नुमान लगारी की नहीं। पेट दर्द की फक्की तो मेरे पास हैं, तुम खा लो, या फिर तुम्हारी सहेली। बेटी, दिल के दर्द की फक्की में लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं बना सका। माम मेरे मरहूम दोस्त मास्टर महमूद की बेटी है। दूसरी तरफ मुज़म्मिल भी अपना ही बच्चा है। कुछ फैसले वक्त करता है, तुम भी इंतज़ार करो अगले महीने तक। अगले महीने की 21 तारीख दे पाए है। हकीम साहब ने इशाल को दूध का गिलास थमाया और वहाँ से चले गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। वो अपनी दादी के सामने बैठे पे तस्वीर बना बैठा था। पिछले साल की में आज पहली बार उसने अपने दिल की बात दादी से की। मोहब्बत बड़े महंगे दामों में मिलती है मुज़म्मिल बेटा, मौत मुफ्त में। दादी ने अफसरदगी से जवाब दिया, मैं तो दाम देने को भी तैयार हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा दाम दूँ तो किस को दूँ। मुज़म्मिल इज़्तिराब के आलम में अपनी कम पेटियों पर हाथ रखते हुए कहा, मुज़म्मिल बेटा, मोहब्बत का दाम अदा करना दौलत के बस की बात नहीं। मोहब्बत तो ज़िंदगी खराज मांगती है। दादी ने अपने गालों पर अश्कों को साफ किया। तो बताए ना कैसे अपनी मोहब्बत को हासिल करूँ। मैंने तो ज़िंदगी में खराज देने के लिए भी तैयार हूँ। ये कहते हुए मुज़म्मिल की आंखें भर आई थी। मुमताज़ बेगम ने देखा तो मुज़म्मिल से कहा, इधर आओ मेरे पास। मुज़म्मिल अपनी दादी के पास बेड पर बैठ गया। दादी ने उसे गला के लगाया और शफकत से चेहरे पर हाथ पर बैठा, तुमने आज बात की है, मैं तो कब से ये बात सब कुछ जानती हूँ। दादी ने कहा। मुज़म्मिल संजीद के चेहरे पर हैरत बिखर गई। आपको किसने बताया? मुज़म्मिल ने फिक्रमंदी से इजलत में पूछा। इशाल ने। दादी ने खबर देने वाला नाम बताया। ये सुनकर मुज़म्मिल के चेहरे पर तासरात एक लम्हे में बदल गए। इशाल ने दादू के अलावा जाने किस किस को बताया होगा। माँ बदनाम हो जाएगी। ये ख्याल आते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में किसी ने मीखे को उड़ा दी। दिल के मीखों से घाव से होश आया तो वो कहने लगा, मुज़म्मिल साहब फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिल को तसल्ली से उसे कुछ राहत मिली। फिर भी उसकी ज़ुबान पर शक की वजह से एक ही नाम था, इशाल। इशाल, एक बात बताओ, तुम्हें क्यों फिक्र है मेरे अपने रिश्तेदारों की? माम ने चाहती नज़रों से इशाल को खरीदा। क्यों है फिक्र? एक कफ़ारा, दूसरा एहसान। इशाल खोए हुए जवाब दिया, दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता। माम ने गौर से इशाल की तरफ देखते हुए बताया, ठीक कहा तुमने, मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ और तुमने मेरे लिए की है थी। मैं तो अब्बा से शायद बात भी ना कर सकती, तुमने उन्हें एग्री कर लिया। मुझे तो ख्वाब ही लगता है मेरा निकाह हो गया, वो भी उससे जिसे मैंने चाहा। हारिस भाई से बात होती है? माम ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आया था, कह रहे थे जल्दी अंग्रेज़ी बोलना सीख लो, जल्दी मैं तुम्हें बुला लूँगा। इशाल के चेहरे पर खुशियाँ झरना भरने लगी। माम, तुम्हारी शादी से पहले मैं मास्टर कहीं भी नहीं जाऊँगी। माम ये सुनकर खामोशी से ही रही। वो अपनी जगह से उठी और सिंगार में इसके सामने आकर बैठ गई। माम की बिल्ली की आंखों सुर्ख दौड़ रही थी। माम ने आईने पे अपनी आंखों को देखा जिसमें नींद की भूख थी। आराम से बैठ जाओ, अभी तुम्हारे स्टेजेस में नहीं खुले। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? ईशान ने हलीमी से पूछा। इतनी ही बेफिक्री से माम ने सिंगार में इसके सामने बैठे हुए नफ़ी में गर्दन हिला दी। दर्पण में आईने सामने बैठे हुए शख्स की सूरत दिखा सकता है उसका दर्द ने, एक दफ़ा हारिस ने कहा था। इशाल आईने के सामने बैठे हुए माम के अक्स को देखकर कह रही थी, तुम किस दर्द की बात कर रही हो? माम ने संजीदगी से पूछा। वो दर्द जो तुम्हारे दिल में है, उस वक्त तुम्हारे आंखों में खून बनकर उतर आया है। मिस्टर डोंट वरी, तो मैं उसको मुस्कुराहट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। मिस्टर मुज़म्मिल, डोंट माइंड, मुझे तो आप दोनों पागल से लगते हो। कॉफ आउट मिर्स फैशन किस्म की मोहब्बत है। मैं आप दोनों को मिलाना चाहती हूँ। किस तरह की बिहेव का चाहिए आप दोनों को? हाज़िर हूँ। ईशान ने अपनी खिदमत की ऑफ़र दी। देखते हैं जीत किसकी होती है। मुज़म्मिल हम कलाम तो था, इशाल से सुन सब कर रहा था।
माम चौधरी, अगर निस्बत टूट जाए तो मोहब्बत खुद ब खुद जीत जाएगी। इशाल ने मुजम्मल मोहब्बत पाने का नुस्खा बताया। इशाल, आपकी फ्रेंड को निस्बत वाले से मोहब्बत नहीं है, निस्बत तय करने वाले से इश्क ज़रूर है। हकीम साहब ने मुझे बताया था। मैंने सारी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स से नफ़रत की है। अब अपनी मोहब्बत पाने के लिए किसी के इश्क से टकराना नहीं चाहता। वैसे भी मोहब्बत खुलूस से जीती जाती है, चालाकी से नहीं। एक बात बताऊं इशाल चौधरी, शम्मू के पिछले 10 साल की हिस्ट्री मेरे पास है, ऑडियो वीडियो के साथ। मुझे पता है माम उसे जवाब बनाकर भी इनकार नहीं करेगी। मैं खुद भी चौधरी शम्मू से इनकार करवा सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा। मुज़म्मिल ने अपनी मोहब्बत के असूल बताए जो इशाल को पसंद नहीं आए। क्या लाहौर और गुजरावाला के दरमियान कोई मेंटल हॉस्पिटल है? आई एम डिप्रेस्ड। तुम दोनों कोई फिक्र ही नहीं है, अगले महीने मुज़म्मिल उसकी शादी है। इशाल ने सख्ती से शादी पर जोर देकर कहा। इतनी ही धीरज से मुज़म्मिल ने जवाब दिया, मुझे पता है। क्यों गुस्सा कर रही हो? ये तुम पूछ रही हो? अगले महीने तुम्हारे इस जानवर चौधरी शम्मू के साथ शादी है। दिन को उस गधे के मुंह में तंबाकू वाले पान होते हैं, रात को उसमें शराब का गिलास। सारे इलाके में उसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है। तुम क्यों कंप्रोमाइज़ कर रही हो? मेरी समझ से बाहर है। माम, मैं अब्बा से कहती हूँ वो शम्मू के अब्बा से बात करे। इस बार इशाल कतरे खफा थी। दफ़ा करो शादी को। तुम ये बताओ, तुमने उनका नंबर उनके नाम से क्यों सेव किया है? माम सिंगार मेज़ के सामने से उठी, बेड से इशाल का फ़ोन उठाया, उसे शांत करने के लिए उसके गाल पर उल्फत से हाथ फेरा और बड़ी मोहब्बत से उसे बेड पर अपने सामने बिठा लिया। माम ने भी मुज़म्मिल की तरह धीरज का मुजाहरा किया। इशाल के चेहरे पर हैरत बिखरी हुई थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? माम ने इशाल को हिलाकर दोबारा कहा। क्या पूछा? वो ऐसे बोली जैसे नींद से जागी हो। उसका नंबर एम क्यों सेव किया है? मुझे चाय पिलवाओ, इशाल ने सन्नी सन्नी करती। माम, मोमना को फ़ोन किया, वो थोड़ी देर बाद चाय लेकर आ गई। चाय पीने के दौरान दोनों में मज़ीद कोई बात नहीं हुई। तुमने अपने स्कूल का नाम क्यों एम रखा है? इशाल ने बताने के बजाय उल्टा पूछ लिया। अब्बू जी कहा करते कि सारी कायनात दो मीमों के सदक़े से वजूद में आई। कहते थे मीम से शुरू होने वाला सफ़र मीम से होकर अब मीम मंजिल तक पहुँचता है। मीम से मीम समझी नहीं? इशाल ने हैरानी से पूछा। मक्का से मदीना, फिर मस्जिद से मुंबर मेहराब तक, मुसलमानों से मोमिन की मर्तबा व मकाम तक, माँ की ममता से मांग तक, महरम से मोहब्बत तक, महबूब से मुख्तार तक, मक्का से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महराज तक। सब कुछ मीम से शुरू होकर मीम पर ख़त्म होता है। इशाल ने अपनी सांस रोक ली जब माँ बात कर रही थी। ये सब कुछ अंकल जी कहा करते थे। इशाल ने इश्तियाक से पूछा। हाँ, अब्बू जी को मीम से शुरू होने वाले नामों से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए हम दोनों बहनों का नाम उन्होंने मीम से ही रखा, माम और मोमना। माम जी, आपके घर के सारे अफराद नामों में दो मीम आते हैं। महमूद, मरियम, मोमना, माम और चौधरी शम्मू के नाम में एक मीम है। मुज़म्मिल में दो। तुम्हारा तो पता नहीं, अलबत्ता मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। अच्छा, मैं चलती हूँ, इशाल ने कहा। ये कहकर मज़े कहे बगैर वो वहाँ से चली गई।